हाय एवरीवन, दिस इज अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सो ना टोटली विल डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. So what is the purely real and purely imaginary number, complex number. Okay, and real and imaginary part of that complex number कौन सा ना पार्ट रियल कहलाता है, कौन सा इमेजिनरी कहलाता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइन, equality of the complex numbers, some of the important result. Okay, and positive integral, no, power of I is nothing but the iota, and that is discovered by the Euler mathematician. Negative integral power of iota. So these are the things we will discuss in the complex number. Okay, and this is the part number 1. So now we will move ahead. So now we will talk about the complex number. So what is the complex number? So number consists of the real number and imaginary number is called the complex number. So जो भी number है and that is the combined with the real number and imaginary number, वो number जो है complex number कहलाता है. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि a plus ib, okay, a plus ib, a plus ib, okay, this is the complex number, because the complex number, this number is consists with the a plus ib. One is the real part, this is the real part, and this is the imaginary part. Okay, where this complex number a and b are real number. Okay, and a plus ib is called the complex number. Okay, so for example we can take it like 2 plus 3i. Okay, this is called the complex number. I is nothing but the iota symbol. Okay, that is no, discovered by the Euler mathematician. Okay, and that value of iota is underscore -1. So that we will discuss later in this video. Okay, so this is called the complex number. So other complex number, if I have to take it like -3, okay, plus 5i, or we can say 4 plus 3i, or we can say 3 minus 2i. Okay, so these are the complex number, and we can say that the I is the iota. I is, okay, called the iota, and value of I equal to underscore -1, right? And complex number is denoted with or no, or represented with the Z symbol. Okay, so complex number denoted by Z symbol. Okay, and we can write like Z equal to a plus ib. Okay, so Euler have discovered, okay, in 1707 to 43, he was discovered the iota symbol, and that is value of I is underscore -1. Okay, and that how it's come I square equal to 1. Okay, I square equal to -1, or yeah, that you can say I square plus 1 equal to 0. So I equal to underscore -1. So this is the value of the I, okay, discovered by this scientist, mathematician. So now we'll understand the real and imaginary part of the complex number. So कोई भी complex number है, and we know that कि complex number denoted with z, and z equal to a plus ib. Okay, I is the iota. So what is the real part of this complex number and what is the imaginary part of this? Okay, so a is the real part, and b is called imaginary part. Okay,
and that is also denoted like a real. How to denote it, how to denote, so real of z and imaginary को denote करते हैं imaginary of I am of z. So okay, so real, okay, re and z and imaginary को imaginary number को denote करते हैं I am, okay, and z ब्रैकेट में. फाइन. सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि z इक्वल टू 2 प्लस, ओके, 4i. सो व्हाट इज द रियल नंबर हियर? आर ई जेड विल बी 2, ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड विल बी 4, ओके. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर. और ना कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है. दिस इज द बेसिक आइडिया. So now we will understand the purely real and purely imaginary complex number. So हमें पता है कि complex number क्या होता है. complex number बनता है real and complex number से. So for example, if I take one example here, z equal to a plus ib. A is the real, b is the imaginary. Okay, imaginary number. अगर मैं बोलूँ कि मुझे प्योरली रियल नंबर चाहिए, ओके, तो प्योरली रियल नंबर कैसे मिलेगा? मेरे को ये बस नंबर चाहिए, ओके, बी ये पार्ट नहीं चाहिए कम्प्लीटली. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से बी शुड बी 0, ओके. अगर बी 0 होगा तो ये कंप्लीट पार्ट जो है 0 हो जाएगा. सो अगर मैं बी को 0 कर दूँ, अगर मेरे को प्योरली रियल चाहिए, प्योरली रियल नंबर चाहिए, तो b को मैं 0 कर देता हूँ. b को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो हमारा z क्या बन जाएगा, ओके, a प्लस आई इंटू 0 एंड दिस विल बिकम द a बिकॉज i इंटू 0 0. सो z इक्वल टू a. तो अगर मैं इसको बोलूँ कि रियल इसमें क्या है और इमेजिनरी क्या है, तो दिस इज़ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है. सो ये मेरा जो है प्योर रियल नंबर बन गया, ठीक है. सो अगर मैं इसको बोलूँ, ठीक है, real of z equal to a and real of imaginary of z equal to 0, nothing. Fine. अगर सेम थिंग्स को अगर मैं कंसीडर करूँ कि मेरे को ये तो मेरा हो गया कि प्योर रियल, ओके. If I consider ki pure imaginary, okay, how we can go ahead? So pure, अगर मैं बोलूँ pure imaginary, so क्या होगा, हम मुझे क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए. उस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे प्योर इमेजिनरी पार्ट चाहिए. वी नो दैट कि रियल नंबर ए है, बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट. सो मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, ए शुड नॉट बी देयर इन दिस, ओके. तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है. ए इक्वल टू 0 किया तो जेड में क्या वैल्यू आ गया, 0 प्लस आई वी, एंड 0 प्लस आई वी इज़ नथिंग बट द जेड इक्वल टू आई बी. सो मेरे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है. सो मैं लिख सकता हूँ कि रियल ऑफ जेड, ठीक है, real of z is what, 0, and real of imaginary of z equal to b, okay. So that I can say here. So इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो है प्योर इमेजिनरी है और ये नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर जो है रियल नंबर है. सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि z इक्वल टू, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जस्ट आई विल चेंज द कलर, z इक्वल टू 6. सो व्हाट आई कैन से हियर, z इक्वल टू 6 मीन्स दिस इज द प्योर रियल, ओके. इफ आई से कि z इक्वल टू आई इंटू 6, तो क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी है, ओके. So this is the basic concept of the pure real and pure imaginary. So now we will see that the zero complex number.
तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जहाँ पे लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ जीरो हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी, ओके। हमें जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है मेरा, ठीक है, रियल पार्ट जीरो होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज ऑल्सो बिकम जीरो। देन इन दिस केस क्या होगा कि z इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो, then this will become z equal to 0. So that means this is the zero complex number where a and b equal to 0. Then this z will become the zero complex number, or we can say that z equal to a plus ib equal to 0. It is only possible when a equal to 0 and b equal to 0, ठीक है। सो दिस z will become the zero complex number. Now we'll see it कि set of complex number क्या होता है, ठीक है। The product set R into R consisting of the ordered pair of real number is called the set of the real number, okay. And the set of the complex number is denoted by C, okay. The set of the complex number is denoted by C and it's defined as C equal to a plus ib, where a and b is belong to real number. So now we will take one example. Find the real and imaginary part of the following complex number. So first is the 7, okay. This is the complex number. If I say z equal to 7, so that means z equal to 7, 7 is the real part plus imaginary part is 0, okay. So we can say that the real of z is 7 and imaginary part of z is 0, okay, because the imaginary part is 0 because only the real part is mentioned here, okay. Now we will see the second one. If mentioned is z equal to 3i, okay, so z equal to 3i, so 3i where I is iota, this that means the imaginary part, so that we can write like z equal to 0 plus 3i, okay. So here what is the real part, so real part of z is 0, okay, and imaginary part of z is 3, right. So now we will see that the equality of the complex number, ठीक है। If the two complex numbers z1 and z2 are equal, okay, then we can compare the real part and imaginary part of the both the complex number, ठीक है। So equality is nothing but the two complex number equal, ठीक है। So suppose if I take the one complex number, okay, z1 equal to a plus or a plus ib, ठीक है, z2 equal to, z2 is the complex number, c plus id, okay, these two are the complex numbers. अगर मैं बोलूँ कि they both are the complex number are equal, if z1 equal to z2 both of the complex number is equal, so क्या होगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के पार्ट इक्वल होता है। सो z1 का रियल पार्ट क्या होता है, अगर मैं z1 को कंसीडर करूँ, ठीक है, जस्ट z1 को मैं कंसीडर करूँ a प्लस आई बी, ठीक है, सो रियल क्या हो गया इसका, रियल ऑफ z1, ओके, a, imaginary of z1 is b, ठीक है, this is the one part. Now if I consider z2 here, okay, and if I say z2 equal to c plus id, ठीक है, so real part of क्या हो गया, z2 c हो गया and imaginary part of z2 is b d हो गया, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि इक्वलिटी में क्या करना है, अगर z1 इक्वल टू z2 है तो रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, सो a इक्वल टू c हो गया बिकॉज रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, ठीक है, सो a इक्वल टू c यहाँ पे आ गया। नाउ इफ आई सी इट कि इमेजिनरी में क्या करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू, ओके,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सो क्या वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा B इक्वल टू D। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। सो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर विद द रियल पार्ट ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड imaginary part of the one complex number is compared with the imaginary part of the other complex number. So ये concept होता है, ठीक है, equality का. So we'll take one example to understand better way, ठीक है, of equality of the complex number, ठीक है. So find the real value of the a and b if this equal to this. So this is nothing but the one complex number, this is nothing but the one complex number, because ये जो हमारा पूरा रियल नंबर है 3a माइनस 6, ओके, प्लस 2ib, 2 भी जो है इमेजिनरी नंबर है. इधर अगर राइट हैंड साइड देखें तो 6 भी रियल नंबर है एंड 6a प्लस a इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो इसको जस्ट हमें कंपेयर कर देना है, रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का रियल नंबर इक्वल टू राइट हैंड साइड रियल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी नंबर इक्वल टू राइट हैंड साइड का इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रियल नंबर क्या है, 3a माइनस 6. ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड का रियल नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का रियल नंबर में देख लिया 3a माइनस 6, राइट हैंड साइड का रियल नंबर माइनस 6b. ठीक है, सो 3a प्लस 6b इधर आएगा लेफ्ट साइड, तो 6b इक्वल टू 6 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, क्योंकि हमने रियल का भी कंपेयर किया. नाउ वी विल सी द इमेजिनरी पार्ट. सो इमेजिनरी लेफ्ट साइड का क्या है, 2b, ओके, राइट हैंड साइड में इमेजिनरी क्या है, ये आई पार्ट वाला जो है 6 प्लस a. तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, a को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 6. ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, दैट्स अ सिंपल इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू, ठीक है, -2 एंड b इक्वल टू 2. ये हमारा क्या हो गया कि a एंड b की वैल्यू आ गई. सो दिस इज नथिंग बट ओनली द वी नीड टू अंडरस्टैंड द इक्वलिटी में क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं. दिस इज द ओवरऑल क्रक्स अबाउट दिस. सो वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, सो हमें पता है कि अंडरस्कोर, अगर मैं इसको अंडरस्कोर a इंटू अंडरस्कोर b, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, अंडरस्कोर ab, हमें पता है ये. ठीक है, फॉर ऑल द पॉजिटिव नंबर, फॉर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b, वेयर a एंड b आर ऑल पॉजिटिव नंबर. ओके, and this is also true when a is greater than 0 and okay b is less than 0, और कंडीशन है कि a is less than 0 and b is greater than 0. ठीक है, ये कंडीशन जो है ये ट्रू होती है. ठीक है, ये ट्रू होती है इन दीज टू केसेस में, वेयर अंडरस्कोर a इंटू अंडरस्कोर b इक्वल टू होल अंडरस्कोर a इंटू b. ठीक है, बट रिजल्ट ट्रू नहीं होता है कब, अगर दोनों a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0 अगर है, a इज़ लेस देन 0, ठीक है, एंड b इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0, b इज़ लेस देन 0. अगर a एंड b दोनों वैल्यू निगेटिव है, लेस देन 0 मतलब क्या हो कि दोनों वैल्यू a एंड b की निगेटिव है, सो ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है. ठीक है, तो हम लोग नहीं कर सकते कि अंडरस्कोर a, ठीक है, इंटू अंडरस्कोर b इज़ नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर a b. ठीक है, इस कंडीशन में हम नहीं कर सकते कि ये जो है, ठीक है, ट्रू होगा ये. सो जस्ट आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है, दिस विल नॉट बी ट्रू.
right? So again we will come to the point. Okay, let's consider ठीक है आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, वी कैन राइट द आई इंटू आई की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट आई इक्वल टू रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, ठीक है। सो दैट मीन्स हमने ए एंड बी, ये ए है ये बी है, हमने किया कि ए इंटू बी, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द आई इंटू आई की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि दोनों वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, ए एंड बी, अगर मैं इसको बोल दूँ कि जस्ट अज्यूम कि अंडरस्कोर ए इंटू अंडरस्कोर बी इक्वल टू अंडरस्कोर ए बी, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल द रियल नंबर, इस केस में क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये अंडरस्कोर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ रॉन्ग, बट अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर देखूँ, ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, बट यहाँ पे अगर इस फार्मूले के थ्रू जाएँ तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है, बट एक्चुअली आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये इस कंडीशन में व्हेन ए एंड बी लेस देन 0 है दोनों, व्हेन ए इज़ लेस देन 0 एंड बी इज़ लेस देन 0, उस केस में अंडरस्कोर ए इंटू अंडरस्कोर बी इज़ नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर ए बी, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वी नीड टू ना रिमेंबर दिस वन। सो आई विल राइट हियर कि अंडरस्कोर ए, ठीक है, अंडरस्कोर बी इज नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर ए बी व्हेन बोथ ऑफ ए एंड बी इज निगेटिव, जब व्हेन दोनों निगेटिव हैं, व्हेन ए इज लेस देन 0 एंड कंडीशन, ठीक है, एंड बी इज लेस देन 0, जब दोनों निगेटिव है दोनों नंबर, तो उस केस में अंडरस्कोर ए और इंटू अंडरस्कोर बी इज नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर ए बी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो विल टेक वन एग्जांपल, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडरस्कोर, ओके, इफ आई से जेड इक्वल टू अंडरस्कोर 37, ओके, प्लस अंडरस्कोर -19। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर 37 दैट इज़ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी, इसको लिख देते हैं कि अंडरस्कोर 19, ठीक है, इंटू अंडरस्कोर -1, ठीक है, दैट यू कैन राइट, बिकॉज अगर हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी देखा कि दोनों निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो दोनों निगेटिव नहीं, एक प्लस है एक निगेटिव है, ये प्लस है ये निगेटिव है, 19 प्लस है -1 निगेटिव है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पता है कि अंडरस्कोर ए इंटू अंडरस्कोर बी इक्वल टू अंडरस्कोर ए बी लिख सकते हैं व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है, बी इज़ लेस देन 0, और ए इज़ लेस देन 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी वी नो दैट। सो नाउ जेड इक्वल टू अंडरस्कोर 37 प्लस अंडरस्कोर 19, ठीक है, अंडरस्कोर -1, वी नो दैट आई की वैल्यू क्या होती है, अंडरस्कोर -1, सो इसको आई लिख देंगे, ठीक है। सो नाउ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी से ना, ए प्लस आई बी, दैट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रियल नंबर क्या हो गया यहाँ पे, रियल ऑफ जेड इक्वल टू ए इज नथिंग बट 37, ठीक है, अंडरस्कोर 37, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जेड इज अंडरस्कोर 19। सो ऐसे इस कंसेप्ट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। सो आयोटा की वैल्यू क्या होती है वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर हम पावर आई पे चढ़ाते जाएंगे, ठीक है, पावर लगाते जाते हैं तो इतना वैल्यू क्या आती जाती है, तो हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देखते हैं पहले, आई पे पॉजिटिव पावर हम लोग देखेंगे, okay, so we'll see it, what is the value of I first, okay, so what is the value of I, we know that I की वैल्यू हमें पता है अंडरस्कोर -1, okay, so we can write the higher power of I, so what we will do, I
आई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडरस्कोर आई इंटू वी कैन राइट आई इंटू आई, सो दैट आल्सो वी कैन राइट अंडरस्कोर -1 इंटू अंडरस्कोर -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1, ठीक है, बिकॉज अंडरस्कोर -1 इंटू अंडरस्कोर -1 ये -1 हो गया, ओके। नाउ इफ आई से आई क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू आई लिख सकते हैं। हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू अंडरस्कोर -1, और वी कैन राइट इट कि -1 इंटू आई रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा -i, ठीक है। अगर मैं आई टू द पावर 4 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 4 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आई टू द पावर 4, सो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1 इंटू -1, सो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आई टू द पावर 5 लूँ, ठीक है, क्यों मैं ये लेते जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं पे ऐसा तो नहीं रिपीटिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। आई टू द पावर 5 मैं लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आई टू द पावर 4 इंटू आई, सो क्या होगा, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, ठीक है, इंटू आई कर देता हूँ, सो ये हो गया आई टू द पावर 6 लेता हूँ, आई टू द पावर 6 को लिखता हूँ कि आई टू द पावर 4, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर, आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 है, ठीक है, क्या हो गया, -1 हो गया। आई टू द पावर 7 लेता हूँ, ठीक है, सो इसको लिख सकता हूँ आई टू द पावर 4 इंटू आई, ठीक है, स्क्वायर इंटू आई, और आई क्यूब भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आई टू द पावर 4 1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, इंटू आई, तो ये क्या हो गया, -i, ओके। अगर आई टू द पावर 8 देखूँ तो क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, सो आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, एन इंटू 1 होते हैं, तो 1 हो गया। अगर मैं देखूँ, ओके, कि आई टू द पावर, अगर आई से आई टू द पावर 4 की वैल्यू देखूँ तो क्या वैल्यू आती है, आई की वैल्यू अंडरस्कोर -1 है, ठीक है। आई टू द पावर 5 की वैल्यू क्या स्टार्ट हो जाती है, आई होती है। सो अगर मैं देखूँ कि आई, ठीक है, -1, और इसको अगर मैं लिख लूँ आई ही, तो आई -1 आई आई टू द पावर क्यूब आई टू द पावर 4 1 है। अगर मैं आई टू द पावर 5 से आई टू द पावर 8 कंपेयर करूँ तो सेम वैल्यू है, डिट्टो सेम कॉपी हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम कॉपी हो रहा है, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि आई अगर मैं ये देखूँ तो ये वैल्यू आई है, ठीक है, और इससे कंपेयर करूँ आई टू द पावर 5, ये भी आई है। अगर मैं देखूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है तो -1 है, ठीक है, यहाँ पे आई टू द पावर 6 की वैल्यू -1 है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, कंपेयर करूँ आई क्यूब की वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू क्या है, -i है, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ कंपेयर करूँ यहाँ आई टू द पावर 7 की वैल्यू -i है। अगर मैं ले लेता हूँ कि आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और आई टू द पावर 8 की वैल्यू 1 है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, आई टू द पावर 4 के बाद ये रिपीटिशन आई टू द पावर 5 से रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जा रहा है, सो दैट वी कैन से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 4q प्लस आर के फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूँ कि ना, वाइल इवेल्युएटिंग आई टू द पावर n, ओके, वाइल इवेल्युएटिंग आई टू द पावर n फॉर आई ग्रेटर देन सॉरी n is greater than 4, then we are writing as writing n as 4q प्लस आर। सो ये जो हमारा जो है n जो है, अगर आई टू द पावर n लिखता हूँ, ठीक है, आई टू द पावर n लिखता हूँ, फॉर n इज़ ग्रेटर देन 4 वी कैन राइट एज, ठीक है, n एज 4q प्लस आर, क्योंकि ये जो है n जो है एवरी 4 के बाद जो है, ठीक है, 4q प्लस आर के फॉर्मेट में बन जा रहा है, मतलब पावर जो है 4 आई टू द पावर n जो है
n इक्वल टू मतलब कर सकते हैं कि 4q प्लस आर के फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि I5 इज नथिंग बट द I टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। सो 4q प्लस आर के फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है, वेयर q एंड r इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, एंड r की वैल्यू क्या है, 0 और ना 0 के इक्वल है एंड लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 है, ओके, बिकॉज 4 हो जाएगा तो अगेन 4q बन जाएगा। तो r की वैल्यू जो है ना 0 और 3 के इक्वल है और बीच में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू 4q, I टू द पावर n इक्वल टू I टू द पावर 4q इंटू I टू द पावर r, बिकॉज हमने बोला कि I टू द पावर n को रिप्रेजेंट करते हैं I टू द पावर 4q प्लस r, ठीक है। तो इसको हमने लिखा I टू द पावर 4q इंटू I टू द पावर r, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगेन लिख सकते हैं I टू द पावर 4, ठीक है, q इंटू I टू द पावर r। हमें पता है कि a टू द पावर n ना टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर mn होता है, ठीक है। तो a टू द पावर mn, I टू द पावर mn को हमने I टू द पावर m टू द पावर n ऐसे लिख दिया, ठीक है। r टू द पावर I टू द पावर r, ठीक है, I टू द पावर r है ये। सो व्हाट वी कैन से लाइक I टू द पावर r है ये, I टू द पावर r, ठीक है। सो I टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट जस्ट नाउ वी हैव सीन I टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। सो I टू द पावर 4 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 टू द पावर q हो जाएगा इंटू I टू द पावर r, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एनी पावर टू द पावर 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा फाइनली I टू द पावर r, ओके। सो I टू द पावर n इज नथिंग बट द I टू द पावर r, ठीक है, क्योंकि वो 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज नथिंग बट द r। सो वो r जो है I टू द पावर r वैल्यू आएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ I टू द पावर 17, इसको अगर मैं लिखूँ कि I टू द पावर 4q प्लस r के फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, I टू द पावर 4q, अगर मैं q की वैल्यू अगर 4 लिखूँ प्लस r की वैल्यू 1 लिखूँ तो ये इक्वल टू है I टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 इज नथिंग बट द I टू द पावर 17, बिकॉज 4 ना 4 जब 16 प्लस 1 17 हो गया, और यहाँ पे दैट नथिंग बट द I टू द पावर 17 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको हमेशा I टू द पावर जो भी है उसको हमें, ठीक है, उसको 4q प्लस r के फॉर्मेट लिखना है। पहली चीज़ तो फर्स्ट 4 का मल्टीपल लिखना है जितनी टाइम्स वो ना, जैसे 17 में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, सो 4 टाइम्स गया, ठीक है। सो ये 16 हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर। सो 4 इंटू 4 प्लस 1 ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देंगे, क्योंकि हमारा I टू द पावर 4 हमेशा 1 होता है वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं कि I टू द पावर 4 टू द पावर 4, ठीक है, ये हो गया फाइन। I टू 4 टू द पावर 4 इंटू I, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो I टू द पावर 4 हमें वैल्यू पता है 1 होता है। सो अगर 1 का अगर ये वैल्यू हो जाएगा 1 टू द पावर 4 इंटू I, सो 1 टू द पावर 4 एनीथिंग इज 1 इंटू I इक्वल टू I, ये वैल्यू I आ गई, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, जहाँ पे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो। सो अगर मैं जनरल टर्म देखूँ इसको, ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ कि I टू द पावर 4k, ठीक है, प्लस I टू द पावर 4k प्लस एनीथिंग इफ आई राइट 4k प्लस 3 अगर राइट करता हूँ तो ये वैल्यू आई क्यू बन जाएगा। I टू द पावर 4k प्लस 1 अगर लिखता हूँ तो ये I बन जाएगा, ठीक है, I टू द पावर 1 हो जाएगा। सो नथिंग बट द I, क्योंकि 4k इज मल्टीपल ऑफ I टू द पावर 4 इज 1 हमेशा होता है, ठीक है। तो ये ईजी होगा ऐसे सॉल्व करना। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I टू द पावर 37, ठीक है। अगर I टू द पावर 37 है तो इसको हम लोग 37 को हम लोग लिखेंगे
इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, आई टू द पावर 4q प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। सो 37 को अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 37 से, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा। सो 9 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 9 प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 9, ठीक है, ये आई है, इंटू आई, बिकॉज हमें पता है कि ए टू द पावर एक्स इंटू वाई को हम लोग क्या सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई लिख सकते हैं, ठीक है, फाइन। सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए टू द पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इक्वल टू नथिंग बट द ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो ये क्या हो जाएगा हमारे वैल्यू, आई टू द पावर 4 टू द पावर 9 हम लगा देते हैं, इंटू आई कर देते हैं। आई टू द पावर 4 की वैल्यू पता है 1 होती है, ठीक है, तो 1 टू द पावर 9 इंटू आई, 1 टू द पावर एनीथिंग इज आई 1, ठीक है, इंटू आई इक्वल टू आई, हमारी वैल्यू आई आ गई, ठीक है। सो ये होता है, ऐसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। सो नाउ वी विल सी दैट कि निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई क्या होता है, ठीक है। अभी हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई देखा था, निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई को हम लोग अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो निगेटिव का मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ आई मतलब आई पे पावर निगेटिव। सो आई माइनस वन क्या होता है, आई माइनस वन मतलब एनी थिंग टू द पावर, एनी नंबर टू द पावर -1 इज वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, ठीक है। इसको हम लोग अगर आई से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो 1 बाई आई इंटू आई बाई आई, सो ये हो जाएगा आई बाई आई स्क्वायर, ठीक है। सो आई बाई आई स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें -1 होती है, तो ये हो गया माइनस आई, फाइन। ऐसे ही मैं अगर मैं आई टू द पावर -2 बोलूँ, ठीक है, तो क्या हो, इसको लिख सकते हैं 1 बाई आई टू द पावर प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, बिकॉज 1 बाई अगर लिखते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाती है, -1 हो गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अगर मैं आई टू द पावर -3 करूँ तो क्या हो जाएगा, तो आई टू द पावर -3 अगर करूँ सो 1 बाई आई क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 बाई आई क्यूब का मतलब होगा कि अगर मैं आई से डिवाइड करूँ या 1 को आई 1 की वैल्यू क्या होती है, आई टू द पावर 4 होती है, बाई आई क्यूब लिख दूँ तो क्या हो गया, आई आ गया मेरा। अगर आई टू द पावर -4 लिख दूँ क्या हो जाएगा, 1 बाई आई टू द पावर 4 हो गया, और 1 बाई आई टू द पावर 4 की वैल्यू, आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, आई टू द पावर 4 1 होता है, सो 1 बाई 1 आ गया। अगर मैं देखूँ ये कि आई टू द पावर -1 की वैल्यू माइनस आई है, आई टू द पावर -2 की वैल्यू -1 है, आई टू द पावर -3 की वैल्यू आई है, आई टू द पावर -4 की वैल्यू 1 है, ये सेम जो है, ठीक है, सेम चीज़ जो है जो कि हमने पॉजिटिव में देखा था, ठीक है, राइट, सिमिलर वे, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे भी वैल्यू जो है आई टू द पावर चलो -5 की वैल्यू दे दें तो सेम रिपीट होगा यहाँ से, ठीक है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा आई टू द पावर 5 से -5 से। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि -4 के बाद जो है अगेन वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आई टू द पावर सिमिलर -n को हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर +n हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई टू द पावर 4q, ठीक है, प्लस r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं n को, इस n को 4q प्लस r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे q एंड r जो है रियल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, एंड r की वैल्यू जो है 0 और 3 के बीच है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई टू द पावर 4q प्लस r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आई टू द पावर -1 को -n को 1 बाई आई टू द पावर n होगा, दैट इज नथिंग बट द 1 बाई आई टू द पावर 4q प्लस r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल देखें तो
तो आई टू द पावर -15 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/i⁻15, ठीक है। 1/i⁻15 को i⁻15 को ये 15 को 4q + r के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो 15 को डिवाइड कर दो 4 से, 3 टाइम्स गया, ठीक है, ये 3 आया। तो इसको लिख सकते हैं कि 4q+ ना, सो 4q + r के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा +3। तो ये क्या हो गया 1/i⁻4⁴ इंटू i³। इसको ऐसे लिख सकते हैं i⁴ 1 होता है, 1 का एनी पावर 1 हो गया इंटू i³। चलो i³ हो गया। अभी इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को i⁴ भी लिख सकते हैं, r1 बाई ये लिख दे पहले i³। अब इसको क्या करें i² इंटू आई कर देते हैं, ठीक है, 1/i² -1 हो गया इंटू आई हो गया, इंटू आई हो गया। सो क्या हो गया -1/i हो गया, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लाइक इसको लिख सकते हैं -1 को i² लिख सकते हैं, i²/i लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट के आई आएगा। तो सेम चीज़ें जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में है, जस्ट ना 1/, करके हम लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। So please like and subscribe my channel if you like this video, because I am going to come with a lot of other video of this chapter and some more chapter. Thank you very much. Thank you very much.